respected Vice Principal Madam Samta, HM Mr. Manish, dear teachers, students, parents and grandparents. It's proud privilege to welcome you on this auspicious occasion of Grandparents' Day. On the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, we are celebrating Grandparents' Day in each and every year. But unfortunately, due to this pandemic situation, we are celebrating the program through virtual mode. Dear students and grandparents, today you will witness the versatile activities of Grandparents' Day done by the students and even performed by the grandparents. The school has arranged various competitions like poetry recitation, drawing, role play, and so on. Even you will also witness that the small children have played the role of grandparents in this premises. You know, the importance of grandparents in our life has no alternate, or it cannot be replaced. We get a lot of experiences from the parents and grandparents. And in this present scenario, when the parents are working, to that time, the role of grandparent is very important. Each and every writer, leader, freedom fighters, philosophical person or psychologist, they have already told us that the work which is done by the grandparent has no substitute, because these are the real life experiences, and with the help of these real life experiences we can shape the future of our children. You know, it is not possible to have experience of and achieve each and everything, but it is obviously possible to listen the experiences and to impart such kind of good habits in our lives. Grandparents have suffered a lot. They have good experiences. They have worked in very hardship sometime. Your parents are also working, maximum parents are working with the force of India. So they know very well what kind of job they are doing, and that experiences are remarkable for us. Grandparents are helping us to fulfill and follow the virtues of life, and on the basis of that virtues only we can shape the life or safeguard the future of the country with the proper hands. So on this auspicious occasion, I congratulate all the grandparents, those who are with their grandchildren, and those who are missing to their grandchildren. I congratulate each and everyone. Thank you very much. Good morning everyone. It's a very proud moment that our Kendriya Vidyalaya ISP is celebrating the Grandparents' Day, and on the occasion of Grandparents' Day, I wish all the grandparents a very happy Grandparents' Day. Grandparents are the ones, the torch bearers, and the ones who have brought in us the moral values, and what today we are is because of our past generation. No doubt there is a shift in the families from the joint family to the nuclear family, and we rarely find grandparents staying with us, but the bedtime stories to today's from the bedtime stories to today's world, whatever is happening in today's world, all these briefings done by the grandparents, the moral values they inculcate is the tremendous work that they have done. They have really worked very hard for us, and a family is set up because of our grandparents. Dear children, you have enjoyed with your grandparents. They are not only just the torch bearers, or they just don't give you the right or the wrong direction, but at times they are your
friends, and they are the best people where you can share your ideas, your feelings to them. As maybe in today's world, the parents are very busy, so the grandparents, the love and affection that you get from your grandparents is tremendous. So really, I appreciate the efforts of these grandparents, and I wish that all my students respect the grandparents, as they are the future. As the because of the grandparents, we have a great future. So, dear children, you all have enjoyed your time with the grandparents. Spend time with them, and definitely this generation that is there, which we learn from the past generation, learning from the new generation, as well the new generation learning from the past generation. I have seen children enjoying with their grandparents and teaching their grandparents mobile and teaching their grandparents WhatsApp and email, and grandparents in return, they are filled with lots of love and affection for these tiny tots. So really, the Grandparents Day that we celebrate in KV brings us and enhances our culture, and you also get to know about different systems that are prevailing in the families and the society today. So appreciable work done by our grandparents. With due respect and regard to our dear grandparents, our grandchildren, our children are learning the values that they are giving us. So that is commendable, and you all are it's very fortunate that our children are with their grandparents today, although in a virtual mode, but being with them itself is a blessing. So being with our older generation is a blessing, and we all require this blessing in abundance. So wish you all the good luck, and thank you very much. नमस्ते, मैं आरुष की नानी हूँ। आरुष मेरा होशियार पोता है। नमस्ते, मैं आरुष का नाना हूँ। आरुष नए नए बातें सिखाता है। नमस्ते, मैं आरुष की दादी हूँ। आरुष मेरा लाडला पोता है। हमें एक दूसरे से बहुत लगाव है। Hello everyone, this greeting card for my grandparents. Grandma, 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 grandpa, grandma, grandpa. Today is for you, today is for you. ये मेरी छोटी नानी, ये मेरे को अच्छे खाना बना के देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं और अच्छे से पढ़ाते भी हैं. Thank you. Once I saw Once I saw a little bird. a little bird. Come, hop, hop, hop. Come hop, hop, hop. दादाजी चलो बॉल डालिए. ये मारा, ये छक्का मारा. मेरा नातू अच्छा पढ़ाते हैं। लॉकडाउन की वजह से तुम अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं उसको गार्डन में लेके जाती है, मेरे को वो सब पोएम वेम करके बताता है। अच्छा पढ़ाई चालू है। मेरे दादाजी है, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं. हाँ, ये मेरा पोता है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, बहुत फटाफटा बोलता है और हिंदी भी बहुत अच्छा बोलता है। उसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, और बड़ा होना चाहिए। नमस्ते, मेरे नाना नानी है. नमस्ते, दोनों मेरी नाती है। अच्छी पढ़ाई करती है, मम्मी की बात सुनती है, घर का भी काम करती है और हंसती भी है। अस्सलाम वालेकुम नानी. वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं अच्छी है, आप कैसे हैं? नाना कैसे है? अच्छे, सब अच्छे। आज ना हमारे स्कूल में ना बहुत बड़ा फंक्शन हुआ. ग्रैंड पेरेंट्स सबके दादी दादा आए थे, बस आप नहीं थे. मैंने आपको बहुत मिस किया. हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे. She is my grandmother and she is my grandfather.
पहली बार तो मुझे हिंदी अच्छी सी आती नहीं है। मैंने मैडम से थोड़ी थोड़ी सीखी हूँ। मैं मंगला जाधव, ये समीक्षा जाधव मेरी पोती है। ये केंद्रीय विद्यालय में उसका नंबर लगा भगवान के कृपे से, तो वो बहुत गर्व हुआ हमें। आजी म्हणजे काय? दुधावरची साय. आजी म्हणजे काय? आपल्या आई वडिलांची आय. आजी म्हणजे काय? उंदराने दात खाल्लेली बाय. आजी म्हणजे संस्कार. आजी म्हणजे माया. आजी म्हणजे प्रेम वात्सल्याची माय. नमस्ते, मेरा नाम नीति हेमंत चौधरी है। मैं कक्षा तीसरी स में पढ़ती हूँ। आज का विषय दादाजी और दादी जी पर हिंदी कविता। आपसे ही है हमारा जीवन रोशन, आप ही करते हो हमारा मार्गदर्शन। मम्मी पापा की डांट से बचाते हो आप, हमारी सभी जिद को पूरा करते हो आप। भगवान का रूप हो आप, जिंदगी की ठंड से बचाने वाली धूप हो आप। आपको है हमारा सादर प्रणाम। धन्यवाद। Good morning to one and all. My name is Sai. Today I am reciting a poem on grandparents. Grandparents, grandparents, it's your day. Sending you a lot of hugs in your way. It's fun to read and cook with you. I like everything you do. Sometimes I am good, sometimes I am bad. You don't get angry, you don't get mad. It's fun to spend a time with you. Thank you, thank you. Good morning, my name is Sanvi, studying class 3rd C. Today I am reciting the poem on grandparents. So let's start. Grandpa, grandma, grandpa, grandma. This song is
always hold my hands, be with me, always hold my hands. You live long, happily, strong and healthy. You live long, happily, strong and healthy. Grandpa, Grandma, Grandpa, Grandma, thank you, Grandma, thank you, Grandpa, thank you, Grandma, thank you, Grandpa, thank you and have a nice day. सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है आराध्या गायकवाड़। आज मैं करने जा रही हूँ ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर पोयम हिंदी में। दादाजी को करती मैं तंग, रहते हैं वो हमारे संग, साथ उनके मैं घूमने जाती, ढेर खिलौने खरीद कर लाती। दादी मेरी लड्डू बनाती, स्वेटर बुनकर मुझे पहनाती। दादा दादी की मैं प्यारी, उनकी हूँ मैं लाज दुलारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मेरा नाम विदिता विनोद वल्लवी है। मैं क्लास 3rd B में पढ़ती हूँ। दादा दादी पर कविता। दादा दादी के प्यारे हैं हम, उनके राज दुलारे हैं। उनके बिना है घर अधूरा, उनके बिन परिवार अधूरा। उनकी आंखों के तारे हैं हम, उनके राज दुलारे हैं। हमसे पहले खुद नहीं खाते, पापा के गुस्से से हमें बचाते। खुशियों से भरे फुवारे हैं हम, उनके राज दुलारे हैं। हमसे इतना लाड लड़ाए, परियों की कहानी हमें सुनाए। ज्ञान के खुले पिटारे हैं हम, उनके राज दुलारे हैं। दादा दादी के प्यारे हैं हम, उनके। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, टीचर्स। हैप्पी ग्रैंडपेरेंट्स डे। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, this song is for you, this day is for you. You are the best and I love you so much. Grandpa, grandma, you are the best and I love you so much. Grandpa, grandma, grandpa, grandma, bedtime story, moral values. So much fun and so much care. I love you, grandpa. I love you, grandma. Be with me always, hold my hand. You are so kind, you are so nice. You live long, happily, strong and healthy. Thank you, grandpa. Thank you, grandma. Thank you, grandpa. Thank you, grandma. हमारी प्राजक्ता को ना लेमन एंड स्पून रेस में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। प्राजक्ता ने कल पूरे स्कूल के सामने नेशनल एंथम गाया है। बहुत बड़ी बात है ये, ऐसा सब नहीं मिलता ये मौका। राजू थक गया बेटा तुम। देखो मैंने आपके लिए क्या क्या बनाया है, देखो देखो देखो। राजू कब से कह रही हूँ रूम साफ कर, रूम साफ कर। चल उठ अभी उठ। माँ एपिसोड के 10 मिनट बाकी हैं खत्म होने को। बाबा क्यों चिल्ला रही है बच्ची पर? उसने बोला ना साफ कर लेगी, साफ कर लेगी ना प्राजक्ता। ऑफ कोर्स दादू। आपका दिन शुभ रहे। प्राजक्ता हाँ आज शाम को मंदिर चले? आज मेरे पास आज टाइम नहीं है दादू, 2-3 दिन बाद जाते। ओके बाय। हेलो राजू। हाँ दादी मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? राजू कहाँ है तू? अब तो कौन और कॉल लेटर। बाय 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 बाय। प्राजी कितना लेट हुआ देखो, इतनी देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए ना, सेफ नहीं। दादू प्लीज अब ना आप मेरे को इस पे लेक्चर मत सुनाओ, ठीक है? मम्मा ऑलरेडी बहुत सुना चुकी हैं। गुड नाइट। जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें उनके साथ साथ रहना चाहिए। ओके यस सानवी जादव। सर अगर हम जाते भी हैं तो उन्हें साथ लेकर जाना चाहिए, नहीं तो कोई तो भी उनके साथ रहना चाहिए उनके लिए। यस बिल्कुल। और दर्श बोलना चाहता है, और कौन बोलना चाहते हैं? समीक्षा सर। आफ्टर दक्ष समीक्षा। सर
है ना, उनका बर्थडे हो तो उनका बर्थडे भी नहीं भूलना चाहिए, उनका बर्थडे भी बनाना चाहिए, नहीं तो कोई बिल्कुल। कोई भूल जाते। यस बिल्कुल, जब हमारा बर्थडे होता है तो उनको अच्छी तरह से याद होता है, वो हमारे लिए गिफ्ट लाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, करेक्ट ना? ओ बच्चों, क्या कर रहे हो? मोबाइल में गेम खेल रहे हो? मोबाइल में गेम खेलना कोई खेल हुआ क्या? मोबाइल में गेम खेलोगे तो सेहत कैसे अच्छी रहे? आजकल के बच्चों को ये भी पता नहीं मैदान कहाँ है। हम लोग तो पूरे दिन मैदान में खेलते थे, माँ बुलाने आती तो भी नहीं जाते थे। मैदान में जाओ, भागो, खेलो, कूदो, सेहत अच्छी बनाओ। मोबाइल में गेम खेलने से सेहत अच्छी नहीं रहेगी। मोबाइल छोड़ो, क्या कर रहे हो बेटा? टीवी देख रहे हो क्या? हम जब छोटे थे कितना खेल कूद करते थे, तुम्हें पता है टीवी देखने से हमारी आंखें खराब हो जाती हैं और चश्मा लगता है। चश्मा हमें संभालने के लिए कितना मुश्किल पड़ता है। चलो मैं तुम्हें पेड़ पौधे दिखाती और उड़ती हुई चिड़िया दिखाती हूँ। आओ चलो। थैंक यू। नमस्ते। हमारे जमाने में दिया लगा के पढ़ाई करते थे। हम कोसों पैदल जाते थे पाठशाला। समझ की हुई पढ़ाई हमेशा याद रहती है, रटी हुई पढ़ाई थोड़े दिनों के लिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, क्या आज सुबह से खेल रहे हो? थोड़ा पढ़ भी लिया करो। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इस बुढ़िया की एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। पता है स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो बच्चों, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो बच्चों, अभी से पढ़ाई में मन लगाओ। हाँ, शिक्षा हमारे लिए एक वरदान है, इससे होता हम सबका कल्याण। धन्यवाद। मैं आयुष सेल के कक्षा दूसरी आज मैं दादाजी बना हूँ। बच्चों, रोज पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है, वो शिक्षा एक ऐसे शरीर का दूध है जो वो पिएगा वो ढाने बिना नहीं रहेगा। देखो बेटा, आज मैं तुम्हें खेल का महत्व बताती हूँ। हमारे जमाने में खेल खेलने के लिए बहुत जगह होती थी, इसलिए हम हमारा पूरा समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेल खेलने में बिताते थे, इसलिए हमें कोई भी बीमारी छू नहीं पाती थी। तो तुम देखो, आजकल के बच्चे सारा दिन टीवी फोन में लगे रहते हो। मेरा तुम्हें यही कहना है कि खूब खेलो, खूब पढ़ो, मन और शरीर का स्वास्थ्य बढ़ाओ। धन्यवाद। राम राम साहब। दादा दादी हमारे घर के सबसे बड़े होते हैं।
आदरणीय होते हैं, जिन वे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें दादा दादी और नाना नानी के पास रहने का मौका मिलता है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, सभी को सुप्रभातों में आज आपको खेलकूद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपको पता है खेलकूद यह एक महत्वपूर्ण विषय है। उससे हमारी शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मुझको पता है बहुत सारे बच्चे मोबाइल पर ही गेम खेलते रहते हैं, पार्क में जाते ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, इससे हमारी आंखें खराब हो सकती है। कबड्डी, खो खो, कुश्ती, दौड़ और ऐसे मैदानी खेल खेलने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आज मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो आप सब मोबाइल ना देखकर पार्क मैदानों में जाकर खेलो। धन्यवाद। और आप सबको मेरे तरफ से बहुत सारे आशीर्वाद है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका दादाजी। कैसे हो आप? अच्छे हो या नहीं? बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, पिज्जा बर्गर बिल्कुल नहीं खाना, इससे आपका पेट खराब हो सकता है और आप बीमार पड़ सकते हो। अच्छी सेहत के लिए फल, दूध और हरी सब्जियां खाओ। ध्यान से सुनो। An apple in a day keep doctor away. An apple in a day keep doctor away. अच्छा, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कृपा करना हमारे घर पर भगवान। ये यीशु क्या कर रही है, देख के आती हूँ। अरे यीशु बेटा, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं नानी, मैं खाना खा रही हूँ। ये क्या खा रही है तू? नानी, मैं पिज्ज़ा, बर्गर, स्वादिष्ट खाना खा रही हूँ। अरे मैंने तुझको बोला है ना कि ये सब मत खाया कर, रोज ये सब खाती तू। अरे तेरी मम्मा तेरे लिए सब्जी रोटी बनाती है, वो नहीं खाया तूने आज तक? नहीं नानी, मुझे यही खाना पसंद है, मैं यही खाना खाऊंगी। अरे तुझे पता भी है हमारे ज़माने में तो हमने सब्जियाँ, फल, सब्जी रोटी खाई थी, फिर भी हमारी ये हालत है। तो तू ये पिज्ज़ा और बर्गर खाएगी तो तेरा क्या हाल होगा? नहीं नानी, मुझे यही खाना पसंद है, मुझे तंग मत करो। जा, तू मेरा कुछ सुनती ही नहीं है। जा, तुझे समझाने का कोई फायदा ही नहीं। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? नानी, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी को बोलो ना मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। अरे मैंने तुझको कहा था ना कि वो बर्गर पिज्ज़ा मत खाया कर। देख मैं तुझको बोला था ना बीमार पड़ जाएगी, देख पड़ गई बीमार। सॉरी नानी, मैं अभी ऐसी गलती फिर से नहीं करूँगी। मैं जो खाना बनाया है वही खाना खाऊंगी। मम्मी को बोलो ना नानी, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। ठीक है, बोलती हूँ। तेरी मम्मा को मैं बोलती हूँ कि तुझे डॉक्टर के पास लेके जा। आइंदा से ध्यान रखना, कभी कभार ठीक रहता है पिज्ज़ा बर्गर खाना, पर रोज नहीं खाना चाहिए। नमस्कार बच्चों, पहचाना नहीं मुझे? मैं हूँ नंदिनी की दादी। मेरा नाम है शकुंतला पवार। क्या बताऊं बच्चों, ये नंदिनी दिन भर फोन खेलती रहती है, मैं इसकी वजह से परेशान हो गई हूँ। बच्चों, आप भी अपने दादा दादी के साथ, मामा मामी के साथ घूमने जाओ और
चश्मा किसी ने देखा क्या? आपके पीछे ही रखा है। आजकल तो मुझे दिखता है। देखती हूँ आज के पेपर में कितने बाहर का है। मोबाइल मत देखा करो, पर जब देखो मोबाइल, जब देखो मोबाइल। चलो बाहर जाके खेलो। अरे मैं तो मेरी दवाई लेना भूल ही गई। अभी का बेटा दवाई लाना। जी लीजिए। ये लो। कल के गाने बिना गाने तो हमारे जमाने के होते थे। लता मंगेशकर, किशोर दा, वाह क्या गाने थे। और ये कुछ गाने हैं। समस्त दादा दादी नाना नानियों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस दादा दादी नाना नानी दिवस की कार्य योजना बनाने में हमें विद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य श्री B.A. लोंढे महोदय एवं सम्माननीय उप प्राचार्य श्रीमती समता जांगड़ेकर महोदय, इनका अनमोल मार्गदर्शन मिला। सभी अध्यापक जिन्होंने छात्रों के साथ मिलकर दादा दादी नाना नानी एवं अभिभावकों की मदद से इस कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों को संपन्न किया, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यालय के संगीत अध्यापक श्री विनोद दाड़े महोदय, जिन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग का काम संभाला, तथा विद्यालय की प्राथमिक विभाग की CCA प्रभारी श्रीमती माधुरी देवरे मैडम ने इन सभी वीडियोज़ को संकलित कर उनको खूबसूरत ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं आप सबका भी अत्यंत आभारी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप सभी दादा दादी नाना नानियों का प्यार और आशीर्वाद हमें इसी तरह से निरंतर मिलता रहेगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।